السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالمغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ ملک میں جاری لاک ڈاؤن میں مزید 2 ہفتے کی توسیع، مرکزی حکومت کا اعلان۔ 31 مئی تک تحدیدات کے ساتھ چند رعایتیں بھی شامل۔ حکومت کو مالی بحران کی فکر، کرونا وائرس کی نہیں، کیسز میں اضافے کے باوجود ٹھوس اقدامات کرنے سے گریز۔ گوداوری کے پانی کے استعمال پر وزیر اعلیٰ کا جائزہ اجلاس، کسانوں کو مزید منافع بخش اور ریاست کو درکار اجناس کی کاشت پر زور۔ غذائی امداد کو بڑے پیمانے پر وسعت دیتے ہوئے شہر کے 11 مراکز سے بھوکوں کو کھانا فراہم کرنے، اکبر اویسی کا اعلان۔ غیر مقامی مزدوروں کو راحت دینے میں مرکزی اور ریاستی حکومت ناکام، مدد کرنے والے کانگریسی قائدین کے خلاف پولیس کارروائی کی اتم کمار ریڈی نے کی شدید مذمت۔ مرکزی حکومت کرونا وائرس سے نمٹنے لاک ڈاؤن کی میعاد میں مزید 2 ہفتے کی توسیع کر دی ہے۔ اس توسیع کو لاک ڈاؤن 4 سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہ تحدیدات 31 مئی تک برقرار رہیں گی۔ قبل ازیں مرکزی حکومت نے پہلی بار 24 مارچ کو لاک ڈاؤن کا اعلان کیا تھا، جس میں بتدریج وقفے سے توسیع دی جاتی رہی۔ اس چوتھی توسیع کے دوران عوامی اجتماعات، مذہبی جلسے جلوس اور سرگرمیاں، سماجی اجتماعات، اسکول کالجز جیسے سرگرمیوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ توسیع شدہ لاک ڈاؤن تک مسافرین کے لیے ایئر ٹریول پر پابندی رہے گی۔ میٹرو ریل پر بھی یہ تحدیدات رہیں گی۔ سنیما ہالز، مالز اور کثیر اجتماع والے مقامات پر بھی یہ تحدیدات نافذ رہیں گی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اس لاک ڈاؤن کے دوران جاری کیے جانے والے رعایتوں سے متعلق تفصیلات پیش کی جانے والی ہیں۔ اس دوران جو راحت دی گئی ہے، اس میں بین ریاستی حمل و نقل کی اجازت رہے گی۔ ہوٹل، ریسٹورنٹ اور سیاحت سے متعلق شعبوں کو تحدیدات کے ساتھ ہوم ڈیلیوری خدمات کی اجازت رہے گی۔ مرکزی حکومت نے بین ریاستی پیسنجر سروس، بسز وغیرہ کی بھی اجازت دی ہے۔ زونز میں کمی و پیشی ریاستوں حکومتوں کے مشاورت سے کی جائے گی۔ کنٹینمنٹ زون میں صرف اشیاء ضروریات سے متعلق سرگرمیوں کی اجازت رہے گی۔ رات کا کرفیو برقرار رہے گا۔ حکومت نے اورنج اور گرین زون میں پہلے ہی آٹو اور کیبس کی اجازت دے دی ہے، تاہم وہ چند ایک تحدیدات کے تابع برقرار رہیں گے۔ مرکزی سیکرٹری داخلہ کی دستخط سے جاری نئی ہدایتوں میں کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا تھا کہ حکومت کو آمدنی کی فکر نہیں ہے، انسانی جانوں کی اہمیت ہے، لیکن بگڑتے مالی حالات کی وجہ سے تلنگانہ میں کرونا وائرس کا خوف جاتا رہا۔ حکومت کو اب مثبت کرونا وائرس کیسز کی فکر سے زیادہ مالی حالات کو سدھارنے کی فکر لگ چکی ہے۔ 5 مئی کے بعد تلنگانہ حکومت مثبت کیسز پر توجہ دینا چھوڑ کر ریاست میں آمدنی کے وسائل پر پوری توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ 5 مئی کے دن شراب کی دکانوں کو کھولنے کے بعد حکومت کی آمدنی شروع ہوئی، جس کو دیکھتے ہوئے حکومت کرونا وائرس کے پھیلنے پر تشویش کا اظہار کرنے کے بجائے آمدنی بڑھانے میں مصروف ہو گئی ہے۔ مرکزی حکومت کی چھوٹ کے بعد تو تلنگانہ حکومت لاک ڈاؤن کو واحد ہتھیار قرار دیتے ہوئے اپنا الو سیدھا کرنے لگی ہے۔ شراب کی دکانوں کو کھولنے کے بعد تلنگانہ میں سب سے زیادہ کیسز درج ہونے کے باوجود حکومت کی طرف سے کوئی سخت رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت اب کرونا وائرس کی لڑائی عوام پر چھوڑ دینا چاہتی ہے۔ اس لیے کیسز میں اضافے کے باوجود محکمہ صحت سختی سے عمل آوری کرنے کے بجائے علاج میں مزید کمی کر رہا ہے۔ وزیر صحت نے کہا کہ کرونا وائرس کے مثبت علامتیں والے شخص کا صرف 10 دن ہی علاج کیا جائے گا، جبکہ شروعات میں 14 دن اور اس کے بعد 28 دن کوارنٹین کرنے کے احکامات جاری کیے تھے۔ پہلے کسی بھی مہلک مرض سے موت ہونے پر اس کو کووڈ سے موت قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب تازہ رہنمایانہ خطوط کے مطابق کسی بھی مہلک مرض سے ہلاک ہونے والے کو کووڈ سے ہوئی موت
नहीं कहा जाएगा। ऐसा लगता है कि हुकूमत अपनी मर्जी से मर्ज के बारे में अवाम को खौफजदा करने का फैसला कर चुकी है। वाज़ेह है कि शुरुआत में वज़ीर आला ने कोरोना वायरस का इलाज फार्मेसी फार्मूले पर पैरासीटामोल से करने की बात कही थी। मरकजी और रियासती हुकूमत की रविश को देखते हुए कहीं ये बात भी सच न हो जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की ज़ेर सदारत में आइंदा मानसून में गोदावरी पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक अमली मनसूबा तरतीब देने के लिए 17 मई को एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में गोदावरी तास की नुमाइंदगी करने वाले विज़रा और ओहदेदारान ने शिरकत की। आइंदा मानसून में गोदावरी से पानी की कितनी मिकदार जारी की जानी चाहिए, कितनी मिकदार में पानी को SRSP और LMD प्रोजेक्ट के लिए छोड़ा जाना चाहिए, मुख्तलिफ ज़खायर-ए-आब के लिए कितनी मिकदार में और कब पानी की निकासी अमल में लाई जानी चाहिए और किस तरह इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। इसके अलावा दीगर मुताल्लिक़ा मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में गोदावरी तास की नुमाइंदगी करने वाले विज़रा बशमूल प्रशांत रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, इटेला राजेंद्र, KT रामाराव, K ईश्वर, G कमलाकर, E दयाकर राव, सत्यवती राठौर, श्री जगदीश्वर रेड्डी को मदऊ किया गया। इसके अलावा मुताल्लिक़ा ओहदेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी रजत कुमार, CMO सेक्रेटरी S सब्रवाल, ENC मुरलीधर, SRSP, CE शंकर, कालेश्वरम, CE वेंकटेश्वरलू और महकमा आबपाशी से वाबस्ता दीगर सीनियर इंजीनियर्स ने इस इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला के इजलास में धान की इजाफी पैदावार और दीगर अजनास के पैदावार का जायजा लेते हुए कहा गया कि मार्केट की तलब के मुताबिक अजनास की पैदावार की जाए। इस सिलसिले में किसानों में शऊर बेदारी की जाए। इन्होंने कहा कि चंद दिन के बाद कृष्णा के पानी के इस्तेमाल के सिलसिले में भी विज़रा के साथ एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा। सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि नकल मुकाम करने वाले मजदूरों के मामले में मोदी और KCR दोनों नाकाम हो चुके हैं। इन्होंने गांधी भवन में साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने गैर मुकामी मजदूरों के मामले में हुकूमत के रवैये के खिलाफ एक दिन की भूख हड़ताल को खत्म करवाया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मुल्क की तकसीम के दौरान भी नकल मुकाम करने वालों को इतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी अब हो रही है। इन्होंने कहा कि KCR प्रेस मीट तक ही महदूद होकर रह गए हैं। नकल मुकाम करने वाले मजदूरों को कम से कम खाना और रहने का इंतजाम करने में वो नाकाम हुए हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत फौरन हरकत में आते हुए गैर मुकामी मजदूरों की मदद करे। कांग्रेस पार्टी पूरा ताउन करेगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस मदद करना चाह रही है लेकिन हुकूमत कायदीन को गिरफ्तार कर रही है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि हनुमंतराव पर लगाए गए दफात नामुनासिब है। इस मौके पर हनुमंतराव ने कहा कि अगर हुकूमत गैर मुकामी मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं करेगी तो वो गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल करेंगे। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि जमहूरियत में अपोजिशन के विकार को बरकरार रखने की बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि कौंसिल के सदर नशीन ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया जो मुनासिब नहीं। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो पैकेज का ऐलान किया है इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं। इन्होंने कहा कि नकल मुकाम करने वाले मजदूर 40 करोड़ हैं तो मरकजी हुकूमत उनकी तादाद 20 करोड़ बता रही है। इन्होंने सवाल किया कि चाय फरोख्त करने वाला हो या फिर कोई और मजदूर, किसी को रास्त फायदा नहीं हुआ। सनत को कर्ज देने की बात की जा रही है लेकिन किसको देंगे इसका कोई जिक्र नहीं। रियासती हुकूमत सिर्फ शराब फरोख्त करने में मसरूफ है। हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से मुख्तलिफ सेक्शन में मुलाजिमत से अवाम महरूम हो रहे हैं। इस मौके पर रुकन असम्बली श्रीधर बाबू ने कहा कि मरकजी पैकेज से हर एक के साथ इंसाफ होने की उम्मीद थी लेकिन पैकेज ने सबको मायूस कर दिया। आबाई रियासतों को जाने वाले मजदूर रास्ते में ही दम तोड़ रहे हैं। हर इतवार सुबह 10 बजे 10 मिनट के लिए अपने घरों की सफाई के लिए एक मुहिम वजीर बलदिया नज़्म व नसख KTR ने शुरू की। दूसरे इतवार को भी वज़रा ने इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए आवाम को अपने इलाकों को साफ रखने की अपील की। रियासती असम्बली स्पीकर ने अपने कैंपस में सफाई की। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने तो जुबली हिल्स इलाके का दौरा करते हुए आवाम को सफाई की तरगीब दी। इन्होंने कहा कि सफाई होगी तो अवाम वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। इस मुहिम का खास मकसद मौसमी वबाई अमराज डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी जो मच्छरों से होती है, इससे बचने के लिए मच्छरों की अफजाइश पर काबू पाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है जो हर इतवार को होगा। प्रगति भवन के पास इतवार के दिन उस वक्त सनसनी देखी गई
जब एक शख्स ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा लेने की कोशिश की। वहां पर मौजूद अमले ने इस शख्स पर काबू पाते हुए उसे पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चंचलगुड़ा के रहने वाले नसीरुद्दीन, जो जूतों का कारोबार करते हैं, गुज़िश्ता 2 माह से लॉकडाउन की वजह से काफी परेशान थे और मकरूज हुए थे, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर वो प्रगति भवन के रूबरू खुदसोजी की कोशिश की। मौसम बरसात से कबल ठहरे हुए पानी की निकासी और कचरा कूड़ा की सफाई पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए हर इतवार के दिन 10 मिनट सफाई के लिए मुख्तस करने की अपील की गई है। अवाम तो अपने घरों की सफाई कर लेंगे, लेकिन बारिश के बाद जो सड़कों की हालत हो जाती है, जगह जगह ठहरे हुए पानी और सड़कों पर फैले हुए कचरे से मच्छरों की अफजाइश होती है। इसको रोकने के लिए बल्दिया की जानिब से इक़दामात करने की जरूरत है। हफ्ते के दिन हुई बारिश के बाद सड़कों पर पानी ठहरा हुआ है। इन मुकामात पर मच्छरों की अफजाइश बड़े पैमाने पर होती है। वजीर बलदी नज़्म व नसक़ के तारक रामाराव ने आवाम से जो अपील की है, अगर वो यौमिया एक सर्कल की सफाई का बीड़ा उठाएंगे तो 1 माह के अंदर अजीम तर बलदिया हैदराबाद में मच्छरों की अफजाइश का खात्मा हो जाएगा। अवाम की तरफ सफाई के इक़दामात के साथ बलदिया की जानिब से भी सफाई के लिए इक़दामात किए जाएं। कोरोना वायरस के सबब नाफिज करदा लॉकडाउन से हैदराबाद में फंसे तबलीगी जमात के 38 अफराद सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की मसाई से इतवार के दिन दिल्ली रवाना हो गए। 24 मार्च को मुल्क गैर सतह पर हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा लॉकडाउन की वजह से जमात के ये अरकान, जिनमें 22 का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और माबाकी दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं, वापस न जा सके। उन्हें क्वारंटीन के मरहले से भी गुजरना पड़ा। ये तमाम कोविड मनफी पाए गए। सदर मजलिस ने इनके लिए खुसूसी इजाजतनामे की सहूलत फराहम की। जमात के मुकामी जिम्मेदार ने इन अफराद की वापसी के लिए सदर मजलिस का शुक्रिया अदा किया और उनके हक में दुआएं की। इन्होंने मजलिस के रुकने असम्बली जाफर हुसैन महराज, कॉरपोरेटर मोहम्मद इकबाल का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन अफराद की वापसी के लिए मुख्तलिफ इंतजामी मराहिल की तकमील की। सदर मजलिस ने इससे कबल राजस्थान, गुजरात, मुंबई के हैदराबाद में फंसे अफराद की वापसी का भी नज्म करवाया। इतवार को जो अरकान दिल्ली वापस हुए, उनके लिए दौरान सफर तोशे का भी इंतजाम किया गया। जितनी तादाद दिल्ली वापस हुई, दिल्ली में रुके हुए हैदराबाद के इतने ही अफराद को वापस यहां बुलाया गया। अब लेते हैं एक वक्फा। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओवैसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने अपनी जानिब से की जा रही ग़िज़ाई इमदाद को इंतहाई बड़े पैमाने पर वसाअत देते हुए GHMC में 11 मराकज़ कायम करने और इसके जरिए ज़रूरतमंदों की ज़रूरतों की तकमील और भूखों को खाना खिलाने का ऐलान किया है। न सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने चंद्रायनगुट्टा के 250 मसाजिद में नमाज तरावी पढ़ाने से महरूम रह जाने वाले हुफ्फाज की मुकम्मल ग़िज़ाई और रकमी इमदाद का भी ऐलान किया। बंडलागुड़ा के अवैसी स्कूल और कॉलेज कैंपस में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार खाने के 6000 से ज्यादा पैकेट्स रवाना करने से कबल मीडिया से बात करते हुए अकबर अवैसी ने कहा कि ताहाल 1 लाख से ज्यादा राशन किट्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों चंद्रायनगुट्टा, याकूतपुरा, चार मीनार, बहादुरपुरा, कारवान, गोशा महल, राजेंद्र नगर, अंबरपेट, शेखपेट, नामपल्ली, बेगमपेट, रसूलपुरा, कापरा, जवाहर नगर, मौलाली, शाहीन नगर के अलावा अजला में भी तकसीम किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ हुक्म रमजान से आज तक 1 लाख से ज्यादा तैयार खानों के पैकेट्स की भी तकसीम की गई। अकबर अवैसी ने कहा कि उनकी सियासी जिंदगी का आगाज ही गुरबा की मदद के अज़ाइम के साथ हुआ और आज हजारों लड़कियों की शादियां, अवैसी स्कूल्स की आसमान को छूती इमारतें इस बात का सबूत हैं कि इन्होंने जिस अज़्म और इरादे के साथ अपना सियासी सफर शुरू किया था, वो न सिर्फ इस पर कायम है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ इसमें मजीद इजाफा करने की मुसलसिल कोशिशें कर रहे हैं। अकबर अवैसी ने अपने इस कार खैर को अवाम की दुआओं का सिला करार दिया है।
اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں اور بزرگوں کی دعائیں، پردہ نشین ماں اور بہنوں کی دعائیں، نوجوانوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ الحمدللہ مسلسل قریب 2 ماہ سے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے مسلسل امدادی کام اور امدادی سرگرمیاں جاری ہیں، اور ہماری جانب سے جتنا بھی ہو سکتا ہے ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا یہ کام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بھوکے کے گھر تک پہنچ کر اس کی بھوک کو مٹائیں، اور اس کوشش میں مجلس اتحاد المسلمین کے سارے سرگرم کارکن، صدور و معتمدین و ابتدائی مجالس کے ذمہ داران، سرگرم کارکن، اراکین بلدیہ اور سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ذمہ داران، ڈائریکٹرز صاحبان، سب نے مل کر اس کام کو کامیابی سے انجام دیا ہے۔ اور یہ کام کا آغاز ہم نے جب کیا تھا تو اس وقت صرف 10,000 پیکٹس راشن کے بنائیں گے کہہ کر ہم نے کام کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کے بعد لوگوں کی ضروریات اور حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو 25,000 تک پہنچایا ہم نے، پھر بعد میں 50,000، پھر بعد میں 70,000، ہوتے ہوتے اب 1 لاکھ سے زائد راشن کے کٹس بنانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، اور قریب 70,000 راشن کے کٹس کو ہم نے کامیابی کے ساتھ تقسیم بھی کیا ہے، جس میں سے قریب 40,000 کے قریب راشن کے کٹس ہم نے حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں تقسیم ہم نے کیا ہے، اور 30,000 پیکٹس چندرائن گٹے حلقے سے ہٹ کر شہر حیدرآباد کے دوسرے علاقوں میں ہم نے تقسیم کیا، جیسے کہ راجندر نگر ہے، حسن نگر ہے، اور پھر کاروان کا حلقہ ہے، حلقہ اسمبلی کاروان، حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ ہے، اور پھر بھولک پور مشیر آباد ہے، پھر اس کے علاوہ بورا بنڈا ہے، بنجارہ ہل ہے، خیرتآباد ہے، بیگم پیٹ ہے، اور پھر وارث گوڑا ہے، لالا گوڑا ہے، محمود گوڑا ہے، اور پھر اس طرف رسول پورے کے علاقے میں بھی ہم نے تقسیم کیا، اور پھر اس کے بعد میں حفیظ پیٹ ہے، کوکٹ پلی ہے، بہرحال شہر شاہین نگر ہے، یہ شاہین نگر میں بھی ہم نے ہزاروں پیکٹس تقسیم کیے۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے کام لے رہا ہے، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس کام کو قبول کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ راشن کے کٹس کے ساتھ ساتھ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے اور ہماری ٹیم نے مل کر الحمدللہ آج میں یہ کہوں گا کہ 1 لاکھ پکایا ہوا کھانا بھی ہم تقسیم کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، 1 لاکھ پیکٹس۔ تو آج 1 لاکھ پکا ہوا کھانا جو ہم نے جس کا آغاز پہلی رمضان سے شروع کیا تھا، اور ہوتے ہوتے آج 15 رمضان سے 5,000 لوگوں کا کھانا روز ہمارے پاس بن رہا ہے۔ پہلے 3,000 لوگوں کے کھانے کو پکانے کے کام سے ہم نے آغاز کیا تھا، ہم پوائنٹس بنائے ہیں جہاں پہ کھانا بن رہا ہے اور وہاں سے ہم تقسیم کر رہے ہیں، اور 5,000 جو کھانے کے پیکٹس بن رہے ہیں، اس 5,000 کھانے کے پیکٹس میں ہم 3,000 حلقہ اسمبلی چندرائن گٹے میں روز تقسیم کرتے ہیں، اور 2,000 پیکٹس ہم چندرائن گٹے سے باہر تقسیم کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم اب تک شاہین نگر میں، اور پھر خبا کالونی میں، مصطفیٰ کالونی میں،
वहाँ पर, और फिर उससे हट के मख्ते मदार में, भोलकपुर में, बंजारा हिल्स में, और भी शहर के हसन नगर में, राजेंद्र नगर के एरिए में, कारवान हलक़े में, गोलकुंडे में, और फिर गोशा महल हलक़े असम्बली में, नटराज नगर और इस तरफ में, और फिर सुल्तान शाही, नशेमन नगर और मुगलपुरा, तालाब कट्टे के इलाके, और फिर रोज़ाना अब से हम करीब 10 दिन, शायद 10 से 12 दिन हम रोज़ाना याखुतपुरे में भी रोज़ाना 700 पैकेट्स हम अहमद पाशा कादरी साहब और यासर अरफा साहब के हवाले करते हैं, वहाँ के कॉरपोरेटर साहिबान याखुतपुरे में तकसीम करते हैं। तो बहरहाल ये एक कामयाबी के साथ हमने ये काम किया है, और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि हम ज़िंदगी के ताल्लुक़ रखने वाले हर शोबे हयात के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आज 5000 पैकेट्स के अलावा सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से हम जितने चंद्रायन गुट्टे में जितने हमारे पुलिस स्टेशंस हैं, उन सारे पुलिस स्टेशन में भी हम खाना भेज रहे हैं इन पुलिस वालों के लिए भी, क्योंकि ये लॉकडाउन शुरू हुए जब से आज तक ये लोग भी रोड पर हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो हम पुलिस स्टेशंस को भी भेज रहे हैं, और लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उस वक़्त भी हम 200 मास्क पुलिस स्टेशंस को भेजे थे, और सैनिटाइज़र्स भी 5 लीटर्स हम भेजे थे। और उसके अलावा जो छोटे जो एरियाज़ में जो छोटे चैनल्स और छोटे जर्नलिस्ट हैं जो लोग, उनकी भी हमने मदद की। प्रेस काउंसिल जो तेलंगाना का है उनकी जानिब से भी जो लिस्ट आई थी उसको भी हमने मदद की, और यहाँ मुकामी यहाँ के हमारे लोग हैं ओल्ड सिटी के जो हैं उनकी भी हमने मदद की है। और हम इंशाअल्लाह ताला कल या परसों ये सोच रहे हैं कि जितने चंद्रायन गुट्टा हलक़े असम्बली के जितने मसाजिद हैं और उन मसाजिद के जितने हुफ़ाज़ हैं जो हर रमज़ान में तरावी होती थी जिन मसाजिद में, और वो हुफ़ाज़ जो तरावी पढ़ाते थे, जो इस साल मसाजिदें बंद होने की वजह से हुफ़ाज़ तरावी मसाजिदों में नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको भी परेशानी का सामना है। तो हमारी जानिब से सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से जितने भी मसाजिदें चंद्रायन गुट्टा हलक़े असम्बली में है, जितने भी हुफ़ाज़ हैं, हम उन सारे हुफ़ाज़ को सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से 1500 रुपये देंगे, और एक राशन का एक किट जो हमारा है जो 11 आइटम्स का है वो भी किट हम उनको मुहैया करेंगे। 5000 राशन के किट्स तकसीम करेंगे 19 और 20 तारीख़ के दिन, ताकि ये जब हम तकसीम करेंगे तो पूरा मुकम्मल लॉकडाउन तक चंद्रायन गुट्टे में कोई तकलीफ़ किसी को ना हो। ये भी हमारा इरादा है, मंसूबा है। इंशाअल्लाह मेरे ख़्याल में शायद 1-2 दिन के बाद ये जितने आशा वर्कर्स और जितने जो एरियाज़ में जो कोरोना वायरस आने की वजह से बंद कर दिया गया था, वहाँ पे जितने भी बल्दिया के लोग, आशा वर्कर्स, पुलिस वाले, जो एरियाज़ जो बंद हुए थे, वहाँ पे जो काम करे थे, उन सब को भी हम हमारे तरफ से कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका भी 19 तारीख़ के दिन प्रोग्राम है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इस काम को कबूल करें। और मैं ये समझता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी क़र्ज़दार है सारे मुसलमानों का, जिन्होंने मेरे लिए, मेरी हयात के लिए दुआएं की थी जब मुझ पर हमला हुआ था। तो मैं बार बार कहता था कि अगर मैं अपने जिस्म की चमड़ी भी अगर निकाल कर अगर इस आवाम के ख़दमों की नज़र कर दूं, तब भी मैं समझूंगा कि मैं उनके एहसान का बदला अदा नहीं कर सकता। तो मैं यही समझूंगा कि अल्लाह का एक दिया हुआ मौका है जो अल्लाह ने मुझे दिया है, और मैं इस अल्लाह के दिए हुए मौके को रायगा नहीं जाने दूंगा। जितना हो सकता है मेरी ज़ात से मुमकिन करूंगा, चाहे इसके लिए अगर ऐसा वक्त आए, खुदा ना खास्ता, अगर मुझे अपने आप को भी बेचना पड़े तो मैं अपने आप को भी बेचकर भूखों को खाना खिलाने की अपनी ज़ात से जितनी मुमकिन कोशिश हो सकती है करूंगा, क्योंकि मैं इनका क़र्ज़दार हूँ। न सिर्फ इसलिए कि इन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि नस्ल दर नस्ल ये हैदराबाद की इस आवाम ने फ़ख्र मिल्लत का साथ दिया, सालार मिल्लत का साथ दिया, नक़ीब मिल्लत का साथ दिया, मेरा साथ दिया,
اور مجلس اتحاد المسلمین کا ساتھ دیا. اور اگر میں کچھ کر رہا ہوں، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ اگر کچھ کر رہا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کر رہا ہوں یا سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کر رہی ہے، بلکہ میری ذات، میرا وجود اگر ہے تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہے. یہ کام مجلس اتحاد المسلمین کا ہے، میں مجلس اتحاد المسلمین کا ہوں. یہ سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بھی سالار کے نام سے ہے. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس کام کا اجر سالار محترم کو دے. اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اس خدمات کا، اس کام کا اجر میری والدہ کو دے. میں سب سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں کہ اگر ہمارا کام کو اللہ قبول کرے، اور دعا کریں کہ اللہ اس کا اجر سالار ملت، فخر ملت، مجلس اتحاد المسلمین کے وہ سارے کارکن، وہ سارے سپاہی جو اس دنیا میں نہیں ہیں، تو اللہ ان کو اس کا اجر دے. مجلس اتحاد المسلمین کے سپاہیوں کو اس کا اجر دے، مجلس کے کارکنوں کا اس کا اجر دے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہی آپ سب سے اپیل کروں گا کہ رمضان کا ماہ ختم ہونے کو آ رہا ہے. وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ سب اپنی زکوٰۃ نکالیے، غریبوں تک پہنچیے. اور پھر آخر میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ وہ ساری تنظیمیں، وہ ساری این جی اوز، وہ سارے افراد جو اپنے طور سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی میں دعا کروں گا کہ اللہ ان کے کام کو بھی قبول کرے. اور قابل مبارکباد ہے ہر وہ شخص، ہر وہ تنظیم، ہر وہ این جی او جو ایسے وقت میں آگے بڑھ کر کام کر رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جلد از جلد اس وبا کا خاتمہ کرے، اس پریشانی کا خاتمہ کرے، اور اللہ ہم سب کو اس وائرس سے، اس وبا سے محفوظ رکھے. ابتدائی سے میری سیاست میں قدم رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں غریبوں کے لیے کچھ کر سکوں اور کچھ الگ ہٹ کر کچھ کام کروں. اور میرا عوام سے وعدہ تھا، جب میں پہلی مرتبہ انتخاب لڑا تھا اس وقت بھی میرا وعدہ تھا کہ میں غریب معصوموں کے ہاتھ میں قلم تھماؤں گا اور ان معصوم کھاندوں پہ کتاب اور بستے کا بوجھ ڈالوں گا، اور علم کی دولت سے ان کو آراستہ کروں گا اور ان کے گھروں میں علم کی روشنی کو منور کروں گا. یہی میرا تھا. اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی عوام سے وعدہ کیا تھا کہ میں غریب یتیم بچیوں کی شادیاں کرواؤں گا. اور اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں کہوں گا کہ یتیم اور غریب لڑکیوں کی شادیاں ہوئی ہیں میری جانب سے. اور پھر آپ لوگ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمارت کا گھر نہیں ہے، یہ غریبوں کے تعلیم کا مرکز ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ مسلمانوں کے اتحاد کا مرکز ہے یہ عمارت. یہ بلندی صرف میری نہیں ہے بلکہ میرے ارادوں کی بلندی ہے. یہ تو ایسے 11 مدارس، 11 بلڈنگ ہیں، 15,000 بچے زیر تعلیم ہیں، اور کئی لوگوں کو ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں. اور جیسا ہمارے دوستوں کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کی جانب سے ہم نے ہیلتھ کیمپس بھی کیے تھے. قریب 50 لاکھ کی دوائیں ہم تقسیم کرے تھے، آپ لوگ کو یاد ہوں گا. اس میں اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بھی تھے. تو ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں، کوئی نیا نہیں ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ چندرائن گٹا حلقہ اسمبلی واحد حلقہ اسمبلی ہے جس نے رمضان میں گلیوں میں افطار کا اہتمام کا آغاز کیا تھا آج سے 20 سال پہلے. اور ہر سال، میں چند سال سے میری طبیعت خراب ہے، جب سے نہیں اس سے پہلے ہر سال میں قریب 20 یا 25 روزے اپنے حلقے میں کھولتا ہوں اور افطار کا اہتمام ہوتا ہے. روزانہ لوگوں کو کھانے کا انتظام ہوتا ہے. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلی محرم سے 10 محرم تک لاسٹ ایئر بھی ہم نے ایک دن 10 ہزار 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا تھا. تو یہ کام ہم کرتے آئے ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو موقع دیا ہے، ہم سے کام لے رہا ہے. اللہ کے پاس بے شمار بندے ہیں جن سے اللہ کام لے سکتا ہے، لیکن اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ اپنے بے شمار سینکڑوں بندوں میں سے مجھے منتخب کیا اور مجھے موقع دیا عوام کی اور غریبوں کی خدمت اور کام کرنے کا. چاہتا کہ ایسے ان حالات میں، کٹھن حالات میں کوئی سیاسی گفتگو کروں یا سیاسی بات کروں، لیکن مگر اتنا تو ضرور کروں گا کہ کہوں گا کہ وقت کے حکمرانوں کی ناکامی کی نشانی ہے. جس طریقے سے ایک مائیگرنٹ ورکرز
पैदल निकल रहे हैं, रक्षों में निकल रहे हैं, भूख में निकल रहे हैं, रास्तों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनके पैरों में छाले आ जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि ये वक्त के हुक्मरानों की नाकामी की एक मिसाल है कि ये लोग की नाकामी की वजह है। अगर इन माइग्रेंट वर्कर्स को ये यकीन दिलाया जाता कि हम हैं, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे, हम हैं, तुमको भूखे नहीं रहने देंगे, हम हैं, तुमको किसी तकलीफ में नहीं रहने देंगे, अगर ये एतमाद अगर वक्त के हुक्मरान दिलाने में कामयाब होते तो शायद इतना बड़ा ह्यूमन क्राइसिस या माइग्रेशन नहीं होता है। ये हुकूमत की नाकामी की एक निशानी है। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हम सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ पे 500 राशन के पैकेट्स मैंने माजिद हुसैन साहब को यहाँ से रवाना किया था, और वो आज भी कहीं से भी कोई भी माइग्रेंट चाहे वो शहर हैदराबाद के कहीं भी इलाके में रहता है, अब तक हम 500 माइग्रेंट वर्कर्स को राशन तकसीम करने में कामयाब हुए हैं, और फिर बाद में और 500 भेजे हैं, और भी माजिद साहब को भेजूंगा कि कहीं पर से कोई भी आता है हम माइग्रेंट वर्कर्स को भेज रहे हैं। और एक वीडियो भी आया था उत्तर प्रदेश में, यहाँ से उत्तर प्रदेश को गए मेस्त्री, और वहाँ जाने के बाद भी उन्होंने हमारी तारीफ़ की है। तो मैं कहूँगा कि ऐसे तारीफ़ के अल्फाज होते हैं जो हमारी हिम्मत को बांधते हैं और हमारे अज़्म को मजबूत करते हैं, और काम में और खुशी देते हैं कि इतनी तकलीफ़ में पैदल 1400 किलोमीटर चलने के बाद भी वो कह रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी हमारा ख्याल रखा है। तो मैं उन तीनों लोगों को सलाम भेजता हूँ अपनी जानिब से और हमारी शहर हैदराबाद की जानिब से, और उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारा हैदराबाद फिर से आपका मुंतज़िर है, लौट कर वापस आइए और अपनी रोज़ी रोटी को हमारे शहर में फिर से आप लीजिए। हम जितना हो सकता है माइग्रेंट वर्कर्स की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हुकूमत से, रियासती हुकूमत से मैंने पहले भी कहा है, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको राशन क्यों नहीं देते? राशन के गोदाम भरे पड़े हैं लेकिन गरीबों को राशन नहीं दिया जाता है। तो मैं मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत से कहूँगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया, कोर्ट का भी आया कि आप जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी दीजिए और सबको दीजिए। और हमारी जानिब से अब तक हम इतना काम करे हैं, आगे भी इससे ज़्यादा हम काम करने के लिए तैयार हैं, और हमारा अज़्म और हौसला अभी भी बुलंद है। कोई ये ना समझे कि अकबरुद्दीन ओवैसी ये 5 करोड़ या 5.5 करोड़ खर्च करके शायद रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, जब तक ज़रूरत रहेगी लोगों की, जितना हो सकता है अपनी जानिब से मैं करता रहूँगा और हमारा काम जारी रहेगा उस वक्त तक। मजलिस के रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने छावनी के मिनहाज हाई स्कूल ग्राउंड में लॉकडाउन से मुतासरा गरीब व मुस्तहिक 800 खानदानों में अशिया ज़रूरिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम किए। तकसीम के मौके पर समाजी फासले का खास नज़्म किया गया। बिला लिहाज मजहब व मिल्लत तमाम तबकात में ये किट्स तकसीम किए गए। अवाम ने मुसीबत की इस घड़ी में अवाम को राहत फराहम करने मजलिस की कोशिशों का शुक्रिया अदा किया। कई खवातीन ने रुकन असम्बली के सर पर हाथ रखकर उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया और दुआएं दी। इस्तिफादा करने वालों ने सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी इजहार तशक्कुर किया। अहमद बलाला ने अवाम से कहा कि वो अपने अपने तौर पर हिदायतों पर अमल करते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त दे सकते हैं। इन्होंने बाग जहां आरा के कंटेनमेंट जोन का भी दौरा किया, वहां इन्होंने मकीनों में तरकारी किट्स तकसीम किए। अहमद बलाला की हिमा पर इस इलाके के मकीनों का एक सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया, जिसके जरिए जरूरत की चीजें उन्हें सरबराह की जा रही हैं।
MB हॉट संतोष नगर डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कुरमागुड़ा और धोबी घाट के अलावा इसके अतराफ अकनाफ के इलाके जात का अहाता करते हुए गरीब और बेरोजगार अफराद में अजनास तकसीम किए गए। मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया। मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी पर मगरबी बंगाल के 50 अफराद दबीरपुरा से उनके आबाई मुकाम के लिए रवाना हुए। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने तफसीलात बतलाई। इलाके माइकल बंडा में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में शिवा नामी एक शख्स ने सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से दरख्वास्त की थी कि उनके इलाके में राशन किट्स तकसीम नहीं किए गए, जिस पर सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मुकामी कॉर्पोरेटर मुस्तफा अली मुजफ्फर को हिदायत दी कि वो मज़कूरा इलाके में राशन तकसीम करें। रुकन बलदिया मुस्तफा अली मुजफ्फर ने मीडिया को बताया कि इससे पहले भी पारदीवाड़ा के इलाके में मौसूला शिकायत पर राशन किट्स तकसीम किए गए। हल्का असम्बली बहादुरपुरा के मुख्तलिफ डिवीजन में राशन किट्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने मीडिया को बताया कि इस मौके पर जहानुमा डिवीजन के फलकनुमा डिवीजन और नवाब साहब कुंटा डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का अहाता करके गरीबों में राशन किट्स तकसीम किए गए। इन्होंने बताया कि मजलिस लॉकडाउन के बाद से मुसलसिल राशन तकसीम कर रही है और इसका ये अज़्म है कि कोई भी भूखा न रहे। इस मौके पर रुकन बलदिया हुसैनी पाशा के अलावा दूसरे मौजूद थे। कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने हल्का असम्बली कारवान के तहत गोलकुंडा और हल्का असम्बली जुबली हिल्स के तहत शेखपेट डिवीजन में लॉकडाउन के सबब मुतासरा और मुस्तहक खानदानों में ग़िज़ाई अजनास के किट्स तकसीम किए। कायद मजलिस की जानिब से उनके हल्के इंतखाब चंद्रायन गुट्टा के अलावा शहर व अजला के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई अजनास के किट्स तकसीम किए जा रहे हैं। गोलकुंडा और शेखपेट के इलाकों में इतवार को हजारों अफराद ने इससे इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिस के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, कॉर्पोरेटर्स राशिद फराज, हारून फरहान, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मजलिस के मुकामी कायदीन मौजूद थे। हल्का असम्बली गोशा महल के इलाके जात राजदार खान पेट और इसके आसपास के इलाकों में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। बेरोजगार और मुस्तहक अफराद ने कसीर तादाद में मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया है। राजेंद्र नगर के इलाके जात अत्तापुर और सुलेमान नगर में मजलिस की जानिब से राशन किट्स तकसीम किए गए। गरीब और बेरोजगार अफराद ने मजलिस की इस फलाही खिदमत से इस्तेफादा किया है। मलकपेट गंज में अचानक आग लगने से सनसनी देखी गई। तफसीलात के मुताबिक गंज के एक तेल की दुकान और गोदाम में आग लगने के बाद 4 फायर इंजन आग पर काबू पाने की कोशिश में हैं। इत्तला मिलते ही मुकामी रुकन असम्बली अहमद बलाला वहां पहुंच गए और फायर सर्विस ऑफिसर से तफसीलात हासिल की। जेडी मेटला पुलिस हदूद के इलाके सुभाष नगर में स्क्रैप के 3 गोदामों में आग लगने से सारा स्क्रैप जलकर खाकिस्तान हो गया। हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब गोदाम में अचानक आग लग गई और थोड़ी ही देर में आग के शोलों ने 3 गोदामों को अपनी लपेट में ले लिया। शहर के 3 फायर ब्रिगेड्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। जेडी मेटला पुलिस मसरूफ तहकीकात है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। मुल्क में जारी लॉकडाउन में मजीद 2 हफ्ते की तौसी, मरकजी हुकूमत का ऐलान। 31 मई तक तहदीदात के साथ चंद रियायतें भी शामिल। हुकूमत को माली बहरान की फिक्र, कोरोना वायरस की नहीं, केसेस में इजाफे के बावजूद ठोस इकदाम करने से गुरेज। गोदावरी के पानी के इस्तेमाल पर वजीर आला का जायजे इजलास। किसानों को मजीद मुनाफा बख्श और रियासत को दरकार अजनास की काश्त पर जोर। ग़िज़ाई इमदाद को बड़े पैमाने पर वसाअत देते हुए शहर के 11 मराकिज़ से भूखों को खाना फराहम करने अकबर अवैसी का ऐलान। गैर मुकामी मजदूरों को राहत देने में मरकजी और रियासती हुकूमत नाकाम। मदद करने वाले कांग्रेसी कायदीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की उत्तम कुमार रेड्डी ने की शदीद मजम्मत।
इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।